So anyways, let's start our conversation, so that we can, and I think we will be doing an informal conversation only, Definitely. just to get to know about you a little bit, get to know about your UPSC journey. And obviously, I looked upon your profile, you qualified at a very young age, which is amazing. So, maybe we can talk a little bit about that, because a lot of aspirants now are trying from college itself. They're starting to prepare from college, which is a good thing. And we can also talk about your experience as assistant collector and a probationer, because that is one of the best times in the service, because you get to experience things from a very different perspective altogether. So first of all, थोड़ा सा मुझे, just give me a little bit background of yours. Where do you come from? What is your education? And, how did you end up in Maharashtra cadre? So I would like to know about that. So, sir, like I belong from Pusa in Samastipur, Bihar. So my Hmm. ancestral home is there only, and I did my class 10th, 12th, everything, all my schooling from Kendriya Vidyalaya, Ari Pusa in Samastipur. So from Okay. class 1 to 12, I studied in Kendriya Vidyalaya. And after Hmm. that, I would say, lucky enough or fortunate enough to secure an admission in Delhi University. So I Hmm. went for political science honors in Dayal Singh College of Delhi University. Actually, I had science stream in class 12, but I thought at that point of time, I was more inclined towards studying social science and political science, history, geography, international relation, and all. That's why I chose political science in my graduation. And Hmm. my graduation phase was like 2017 to 2020. So I graduated in 2020, and my last semester was not scrapped, but it got delayed due to the COVID. So I Hmm. graduated in 2020. I gave examination in the same year, Hmm. and with the God's grace, in the first attempt, I was able to clear this examination. Hmm. And as far as Maharashtra is concerned, so my first preference was always like home state, that was Bihar. Yeah. So, but there was only one seat in insider and general category in Bihar, and Okay. that went to All India rank one Shubham. Sorry, my second preference was Rajasthan, but there was no insider general category seat in outsider Right then. general category seat in Rajasthan. So Hmm. वो भी चला गया, and then again, sir, there is zone wise system. So in Zone. Yeah. zone three, I had Maharashtra as my first preference, above Yeah. Gujarat and Madhya Pradesh. So I automatically got Maharashtra. You got Maharashtra. Great. No, fantastic. You have landed up in a good cadre. So I think after a few years, you will realize the kind of opportunities you get to work here. It is a very different state. Every state is different. I'm sure every state has different opportunities, different way. But here you get very different exposure. And I will talk about it a little bit, because when I started as a SDMPO from, now I'm CEO Zilla Parishad, and I've done one CEO Zilla Parishad already for 1 year. So now I get to understand what are the opportunities as a professional that you get in this cadre. But your background is very interesting, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय मैंने भी अप्लाई किया था जब मैं क्लास पता नहीं कौन सी क्लास में था, फिफ्थ में था शायद. आई थिंक फिफ्थ और सिक्स, समथिंग लाइक दैट. नो, अराउंड दैट टाइम यू अप्लाई फॉर इट. एग्जाम होता है, उसका कंपटीशन होता है. Actually, वो नवोदय विद्यालय में होता है. So केंद्रीय नवोदय में होता है. हाँ, नवोदय नवोदय में केंद्रीय होता है. विद्यालय has a system की, like my father is a central government employee. So हाँ, Kendriya Vidyalaya is usually made for serving the awards of those kind of employee. So I got it. राइट. I also gave the entrance of Navodaya Vidyalaya, but I couldn't clear it. That was a story. I also could not clear it. मैं भी फेल हो गया था उसमें. So it is funny, right? कि मतलब so life comes full circle. So I at that time then appeared. After that, I appeared for Rashtriya Indian Military College, RIMC Dehradun, where I did my schooling, and I think that was a blessing of God. कि एक कुछ नहीं मिला तो दूसरी जगह ऐसी मिली जिसने changed my life forever. So I think क्या होता है ना, कभी-कभी something you don't get, it's good for you. कई बार क्या होता है, you want something really badly but नहीं मिलती, तो आप सोचने लगते हो कि I tried so hard for it, but sometimes things work for a God betterment only. always has plans, sir. God always has good plans for those who work hard. That's true. So Kendriya Vidyalaya, that's very good. I think Kendriya Vidyalaya system and Navodaya Vidyalaya system is very, very, very good system in India. And I think, in fact, even government is trying to make policy ki how to replicate them even more, right? Because जैसे I will tell you, in Thane, in Zilla Parishad, we have a lot of tribal schools. So we try to, and we have Zilla Parishad government schools. So we try to make sure that a lot of children from our schools are selected into the नवोदय विद्यालय सिस्टम, क्योंकि उनकी लाइफ चेंज हो जाती है एकदम. द वंस इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग में मेरा जो तहसीलदार था,
ही वाज फ्रॉम a नवोदय विद्यालय, तो ही वाज लाइक सर किसी तरह से लेट्स ट्राई टू सेंड आवर बच्चों को किसी तरह से नवोदय के एग्जाम में बैठाते हैं, उनको कोचिंग देते हैं। तो वी ट्राइड इट व्हेन आई वाज देयर इन भामरागढ़ गढ़चिरौली। तो वो मतलब वो पैशन दिखता है उनमें, क्योंकि दे हैव मेड इट फ्रॉम समवेयर वेरी humble background to somewhere very different kind of a job। तो I always appreciate that। और साइंस से मतलब साइंस से तुम सोशल साइंस में आ गए, यस तो ये यूपीएससी भी कम होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते पहले तो, नंबर वन। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश कि भाई क्यों आईआईटी का एग्जाम दो। like I was mainly interested in physics, studying physics at higher level, but जब वहां पे था like केंद्रीय विद्यालय, मेरे यहाँ पे 12 बच्चे थे क्लास 12 में, only 12, and there was no facilities of coaching, any kind of tuitions or anything। जहाँ तक था कि मैं खुद से and even the entrance of IIT JEE and I secured around 1,50,000 तो एक बैक आई so थिंक बीच में कुछ हाँ हाँ रिकॉर्डिंग का हुआ था। एनीवेज वी आर बैक। हाँ तो सिंस आई एम फ्रॉम बिहार, तो बैक ऑफ माइंड ऑलवेज रहता है कि यू हैव ऑलवेज सीन एन आईएएस आईपीएस। तो उससे मैंने सोचा कि चलो इस लाइन में देयर इज वन अपॉर्चुनिटी कि मैं सिविल सर्विसेज भी ट्राई करूंगा। सो दिस वाज माय मेन थिंकिंग, लाइक मुझे फिजिक्स या साइंस में कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं आगे पढ़ने की, और आर्ट्स वाज द ओनली ऑप्शन जिसमें आई वाज कॉन्फिडेंट कि अगर मैं 12th में इतने परसेंट ले आऊं, लाइक आई सिक्योर्ड 91%, तो उसमें मुझे डीयू में किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एंड बिकॉज मैंने पेरेंट्स को पहले ही बोल दिया था कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए, लाइक ग्रेजुएशन के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहीं बाहर जाना है और किसी अच्छी जगह से पढ़ना है। सो दिस वाज मेन रीजन ऑफ चूजिंग ह्यूमैनिटीज इन नहीं नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन। इनफैक्ट तुम्हारे डिसीजन से दो तीन चीजें मेरी बात दिमाग में आती है। एक तो होता है कि साइंस स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के लिए हमें सोशल साइंस क्यों नहीं लेनी है कि नहीं, उसमें आई थिंक दे कैन यूज योर, दे कैन लर्न फ्रॉम यू कि अगर तुम्हारा किसी चीज में इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो डिस्पाइट कौन सा भी फील्ड हो सकता है, पर उसमें आप जा सकते हो। देयर इज ऑलवेज, इट्स अ गुड थिंग। और थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में अगर करियर के बारे में, आप जैसे यूपी बिहार में, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में आईएएस आईपीएस का ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है बच्चों में। इनफैक्ट अब तो और पैन इंडिया हो गया है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी उस केस में तो डेफिनेटली सोशल साइंसेस हेल्प ए लिटिल बिट मोर। डेफिनेटली साइंस ऑलवेज हेल्प्स। मुझे लगता है साइंस से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो तूने 12th तक साइंस पढ़ी, उसका इट विल ऑलवेज हेल्प यू, यू नो। definitely. One But benefit, yes, sir. Like yeah, one benefit that I got in UPSC preparation, that I had science in class 12th. So not even in class 12th, during my graduation also, मैंने 4 semester I chose political science in elective subject. Like I did coding, programming, and everything. Even when I was studying political science in college. So I always advise all the people, all the aspirants कि आप humanities choose करो, science choose करो, it doesn't matter, but you must have a technical bent of mind. आपको you must have interest in science and technology, आपको explore करने की इच्छा होनी चाहिए कि let's see कि science में क्या क्या हो रहा है। This thing will always brush up your mind, और इससे आप हमेशा एक dynamic person बने रहोगे। So this is my बिल्कुल। नो दैट्स वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का एज है। यू कैन नॉट बी इलिटरेट इन टेक्नोलॉजी, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। व्हेन यू स्टडी साइंस, व्हेन यू स्टडी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन चीजों से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और दुनिया को देखने का नजरिया, डेफिनेटली साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं ना जिसको, दैट गेट्स डेवलप्ड। सो आई थिंक वही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से इवन क्लास 6 में है, 7th में, वो पूछ रहे हैं कि सोशल साइंस लेनी है क्योंकि आईएएस बनना है। मैं बोलता हूँ कि तुम अभी बहुत ज्यादा, दिस इज नॉट द राइट स्टेज टू थिंक अबाउट कॉमर्स, साइंस, ये वो। साइंस पढ़ो, साइंस से माइंड खुलता है। बहुत ही बिल्कुल भी समझ में नहीं आती तो मुझे लगता है उसमें या तो टीचर की प्रॉब्लम है कि टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है, राइट? क्योंकि अच्छा टीचर होगा तो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। मतलब आई जेन्युइनली बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। तो वो बहुत अच्छा। तो दैट्स गुड यार, यू टुक टुक पॉलिटिकल साइंस, जेन्युइन इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस। तो अभी भी डू यू गेट टाइम टू रीड? पढ़ते हो बुक्स वगैरह, पढ़ते रहते हो, या फिर छूट गया है, मतलब क्योंकि सर्विस में आने के बाद सब ऐसे ही हो जाता है? सर एकेडमी में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, बट अगेन आई स्टार्टेड माय हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स, सो आई mainly read non-fiction books on IR or on Indian economy, Indian politics or something. So ये मेरा hobby continue है. But again I also read books on physics. Like मैंने स्टीफन हॉकिंग्स की बुक पढ़ी है, मैंने
एक हाइपर स्पेस करके बुक है, वो भी पढ़ी है. एंड सो आई कीप रीडिंग अबाउट एन नंबर ऑफ डाइवर्स थिंग्स. सो या दैट्स गुड, दैट्स गुड. उससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है, हमारा जॉब इतना ज्यादा फायर फाइटिंग इश्यूज आते हैं, इतना ज्यादा देयर इज सो मच गोइंग ऑन. तो उससे रिफ्रेश अपना माइंड को कंसिस्टेंटली अपडेट करने के लिए यू नीड टू रीड एंड यू इट्स एंजॉय, मतलब रिक्रिएशन होता है, अच्छा अच्छा लगता है. तो अभी नाउ योर प्रोबेशन वाज वेयर, प्रोबेशन कहाँ पे था? सर प्रोबेशन इज इन धुले. सो इट इज गोइंग ऑन. अच्छा, दो ढाई अच्छा महीने अभी प्रोबेशन ही चल रहा है, असिस्टेंट कलेक्टरशिप. प्रोबेशन हाँ. चल रहा है. तो उस दिन जस्ट दिस रैंडम थिंग कमिंग टू माय माइंड, उस दिन मैं कुछ बहुत सीनियर ऑफिसर से मिला जो रिटायर हो गए हैं, जो 1970 बैच 60 बैच टाइप, वेरी वेरी सीनियर रिटायर्ड. देयर वाज अ गेट टुगेदर, और उसमें दे वर सेइंग कि तुम सूप कहाँ पे थे, सूप. दे यूज्ड टू अपेरेंटली कॉल सूप, सुपर न्यूमेरी बोलते हैं ना, सुपर न्यूमेरी असिस्टेंट. सुपर असिस्टेंट So कलेक्टर. they were like, तुम सूप कहाँ पे थे? Where were you soup? तो मैं I was like, I could not understand what do you say soup क्या है अभी? So I was like, अच्छा अच्छा assistant, super numeri assistant collector होता है ना, तो सूप कर रहे थे वो. But anyways, so अच्छा धूले में अभी तुम्हारी असिस्टेंट कलेक्टरशिप चल रही है. हाँ, तो तुम्हारा तो थोड़ा सा बताओ कि असिस्टेंट कलेक्टरशिप में या फिर प्रोबेशन में जो आईएएस की फील्ड ट्रेनिंग, एक बुक है इंग्लिश ऑगस्ट, जो भी जो लिखी गई थी, इट वाज रिटन when the person was IAS was in the training, और वो महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर थे. बट एनीवेज, तुम्हारी जो ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. हाउ इज इट गोइंग, व्हाट यू आर लर्निंग? सर सो ट्रेनिंग क्या हुआ आफ्टर लबासना में फाउंडेशन कोर्स एंड फेज 1 होने के बाद वी गेट टू कम टू अवर होम, मतलब टू अवर अलॉटेड कैटर, इट इज महाराष्ट्र. एंड फिर हमारी लाइक 15 डेज का यशोदा एटीआई में ट्रेनिंग हुआ. सो एवरी स्टेट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो पुणे में है हमारा यशोदा में. सो आफ्टर 15 डेज वी हैड 15 डेज ऑफ महाराष्ट्र दर्शन एंड देन वी गॉट पोस्टेड इन आवर डिस्ट्रिक्ट on 19th of September, if I can correctly recall. तो इसमें क्या है कि for the this whole probation phase continues for 1 year, including the state ATI training as well as the state darshan. So in the first phase of your probation, mainly क्या है कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अटैचमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अब डायरेक्ट अगर आपको पोस्ट दे दी जाएगी तो आप काम कर नहीं पाओगे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे करता है. सो दिस इज द फेज गोइंग ऑन कि आई एम लर्निंग कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसा काम होता है, हेल्थ में क्या काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में क्या काम हो रहा है. एंड द सबसे नेग्लेक्टेड एरिया, लाइक व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, तो हमें एवरीथिंग वाज डेवलपमेंट, सरकार के योजना को इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को अपब्रिंगिंग करना है. बट हियर आई गोट टू नो कि रेवेन्यू इज द बिग थिंग, कि हम लोग डेवलपमेंट तो देखते हैं, दैट इज अ गुड वर्क, बट रेवेन्यू इज द कोर वर्क ऑफ कलेक्टर्स. सो हम रेवेन्यू फंक्शंस के बारे में काफी अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आखिर रेवेन्यू फंक्शंस क्या क्या होते हैं. एंड देन द लाइन डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट में जितने होते हैं, उन सब चीजों में कैसे कैसे काम चलता है, वी आर सीइंग फाइल्स. सो इनिशियली काफी टफ डेज थे, बिकॉज सिंस आई एम फ्रॉम बिहार एंड कभी मराठी से एक्सपोजर रहा नहीं. सो लर्निंग मराठी इज अ न्यू थिंग फॉर मी. तो इनिशियली तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट देन अगेन ड्यू टू हेल्प ऑफ क्लासेस एंड देन मैंने खुद से इम्प्रूव किया मराठी को. सो नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, लाइक समझ में तो आ जाता है 100%, पढ़ने में भी आ जाता है, एंड आई एम इम्प्रूविंग इट. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेशन फेज. सो अटैचमेंट्स ऐसे करके आपके बहुत सारे अटैचमेंट्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग चीजों के साथ. एंड देन 4 हमें इंडिपेंडेंट चार्जेस भी मिलते हैं. मेरा अप्रैल नेक्स्ट ईयर अप्रैल से शुरू होगा. तो उसमें यू आर मेड लाइक बीडीओ, तहसीलदार, एसडीओ एंड 1 चार्ज इज ऑफ चीफ ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल. तो ये 4 चार्जेस मिलते हैं आपको टू गेट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कि चलो आपने समझ लिया कि वर्क होता कैसे है, बट नाउ वर्क फॉर 1 month एंड गेन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. सो उस दैट 4 month इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस 4 months का फाउंडेशन अभी लग रहा है, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ प्रोबेशन एंड इज वेरी वेरी एंटरटेनिंग, बिकॉज like for example, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. there is one NH3 project going on in the Dhule district. so हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी टाइम ओवररन होता है, कॉस्ट ओवररन होता है. एंड देन when I went to understand how it is being constructed, फिर मैंने समझा कि कौन सा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कितना बजट था, आफ्टर 6 years ये बढ़ के कितना हो गया है, रीजंस क्या थे, क्योंकि कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है. so these are the practical experiences which we are learning these days. So training is pretty interesting. Yeah. Training is one of the best parts because you can learn a lot of things. Responsibility नहीं होती, आपको फ्री छोड़ा जाता है कि भाई आप सीखो, अच्छी तरह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम की सिस्टम कैसे काम करता है. क्योंकि बिकॉज द गवर्नमेंट सिस्टम इज सो बिग कि उसमें चेंजेस लाना इतना आसान नहीं होता. यू हैव टू पुश हार्ड
और उसमें साथ में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सब स्टेक होल्डर्स को साथ में रखना होता है, सबको समझना होता है। इनफैक्ट जब मेरा प्रोबेशन था तो आई वाज ए प्रोबेशनर इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट, और शैलेश सर को जानते होंगे, शैलेश नवल सर हु इज इन लपासना, ही वाज माय कलेक्टर, सो ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन। तो उस टाइम वो कलेक्टर थे, और मेरा बेस्ट मेमोरीज फ्रॉम माय प्रोबेशन इज कलेक्टर के घर पे जाना खाना खाने, ऑब्वियसली, बिकॉज क्या होता है तुम गेस्ट हाउस में रहते हो, वहां पे खाना वगैरह इतना अच्छा नहीं होता, तो काम चलाना पड़ता है, किसी तरह खिंचता है, तो मैगी बनाना वो अलग चलता रहता है या डेफिनेटली पिज्जा वगैरह, या बट कलेक्टर के घर पे जाके मैं दाल बाटी बहुत खाता था, बिकॉज ही इज फ्रॉम राजस्थान, तो ही यूज्ड टू इनवाइट मी अ लॉट, मैं जाता था, खाता था, इट वाज सच अ गुड टाइम। बट दैट इज पार्ट ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस साइकिल में। और कोई आपको प्रोबेशन में जानता नहीं है इतना डिस्ट्रिक्ट में, बिकॉज यू आर जस्ट अ वेरी जूनियर ऑफिसर, और इतने लाइमलाइट में नहीं होते, तो यू कैन गो ऑन। मैं साइकिल लेके निकल जाता था कहीं भी बाजार में, सो इट वाज वेरी गुड। अभी क्या होता है, थोड़ा सा लोग जानते हैं तो इट इज बिकम्स मोर डिफिकल्ट, क्योंकि सब लोग जानते हैं। यस यस But anyways, that was something good. But you touched on a lot of good things, learning in different positions, कि आपको अलग अलग चार्जेस दिए जाते हैं, तो आप उसमें सीखते हैं। लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम रहता है, मुझे भी शुरू में, क्या है, वर्धा वाले एरिया में हिंदी भी चल जाती है थोड़ी बहुत, विदर्भा में ना, नागपुर वर्धा एरिया, तो फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट टू पिक अप लैंग्वेज इन द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे लाइक यू सेड समझ में आने लगती है, और एक बार समझ में आने लगती है तो फिर लिखना भी इजी, मतलब लिखी वाली भी समझ में आने लगती है, बट बोलने में टाइम लगता है एक्चुअली। बोलने में टाइम लगता है, तो एग्जैक्टली। इवन फॉर मी इट नाउ आई फील कंफर्टेबल स्पीकिंग, मतलब मैं कहीं भी अभी आराम से बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, किसी से भी कॉन्वर्सेशन करता हूँ, बस कभी कभी नर्वसनेस हो जाती है, तो कभी कभी वर्ड्स आपके इधर उधर हो जाते हैं। बट आई एम वेरी श्योर, मतलब मुझसे कुछ प्रोफेशनल्स ने लास्ट में पूछा था, सर मराठी कैसे सीखे, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला, अरे तुम बस सुन, मराठी सुनोगे जितना, उतना ही तुम्हारे को बोलनी आ जाएगी, डोंट वरी, जस्ट बी अटेंटिव, वर्ड्स को देखो कहाँ से क्या है, क्योंकि मुझे लगता है लैंग्वेज सीखना इज वन ऑफ द बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ प्रोफेशन। और एग्जैक्टली। वो भी कर लोगे तो वो एक ही अचीवमेंट बहुत बड़ा है। और उसके बाद ऑब्वियसली अभी तुम्हारा मंत्रालय अटैचमेंट शायद हुआ नहीं है, नो सर, तो फरवरी में होने वाला है। अच्छा फरवरी में होने वाला है, तो वो बहुत, चलो मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा घर पे, थाने इज क्लोज बाय, या ईगर। I will surely, मतलब I'll be very excited to have provisioners, but Mumbai attachment is one of the best attachments, क्योंकि एक महीने का होता है, and you see the complete different side of administration, क्योंकि क्या होता है, अभी तो फील्ड में हो तो फील्ड ऑफिसर्स अलग ही लगे हुए हैं, और मंत्रालय में क्या है, सेक्रेटेरिएट है अपना, पॉलिसी मेकिंग वहां हो रही है, वहां पे पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, तो वहां पे जो है सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, एंड यू विल सी ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीएमसी, बीएमसी, बिगेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 45,000 करोड़ इन बजट, तो उसका चलाने का अलग ही सिस्टम है। तो वो सब जो तुम आओगे देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजा आएगा। सो आई थिंक दैट इज द गुड थिंग अबाउट महाराष्ट्र काडा। महाराष्ट्र काडा यू हैव दिस absolute big opportunities to work in different positions, from rural to tribal to very very urban, वो है। पर उसके साथ फिर चैलेंजिंग भी ज्यादा रहता है डेफिनेटली, बट धूले में, आई थिंक धूले में जलज सर इज योर करेक्टर। यस, जलज सर इज माय कलेक्टर एंड इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। जैसे इज एन आपने अमेजिंग। बताया कि आप शैलेश सर के यहाँ दाल बाटी खाने जाते हो, तो सर भी मुझे इनवाइट करते हैं डिनर पे, तो वो काफी अच्छा रहता है कि चलो सर के साथ बैठे कुछ बातें भी हो जाएंगी, कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। सो ही इज एक्चुअली वेरी नाइस एंड ही टेक्स लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन माय ट्रेनिंग। सो वो काफी अच्छा चीज है, बिकॉज इन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग व्हाट मैटर्स कि आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, लाइक आपके बॉस यस। अच्छे होने चाहिए। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू डू प्रोबेशन अंडर हिम। यस यस, हाँ, मतलब इफ योर कैरेक्टर इज गुड, यू गेट द गुड एक्सपोजर, और फिर बहुत अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है उनके साथ, पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग। एंड जलज सर इज एन अमेजिंग ऑफिसर। वो आई थिंक ही वाज इन यवतमाल जब मैं वर्धा में था, ही वाज सीईओ यवतमाल, हिज वाइफ वाज अमरावती सीईओ, तो हम लोग एक बार होली पे मैं उनके घर गया था, व्हिच इज आल्सो नाइस मेमोरीज, तो उस तरह से मतलब कुछ कुछ। तो मराठी अभी सीख रहे हो, मराठी अच्छी चल रही है? सर 100% समझ में आ जाती है, अनटिल अनलेस कोई एकदम ही फास्ट लोकल टोन में ना बोले, बिकॉज अलग, हाँ जैसे जलज सर की मराठी मुझे 100% समझ में आती है। लाइक वेन एवर आई गो टू ऑफिस, लाइक किसी भी ऑफिस में अटैचमेंट होता है, तो वहाँ के क्लर्क्स या बड़े बाबू या सबको बोलता हूँ कि आप मराठी में बोलो, तो मैं हाँ मराठी करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा उसको समझने के लिए। सो हाँ थिंक को तो मराठी समझ में आ जाती है। बोलना का इशू ये है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल भी लेता हूँ, बट जो बिग सेंटेंसेस होते हैं वो हेड में आते हैं बट माउथ पे नहीं आता है। सो दिस इज द थिंग कि वो आई थिंक कि इवेंचुअली वो भी सॉल्व हो जाएगा। हो एंड जाता एज है, फार एज रीडिंग इज कंसर्न, शासकीय मराठी तो अभी काफी कठिन है, बट वो भी धीरे धीरे, लाइक आई कैन गेट द जिस्ट ऑफ द थिंग, लाइक अगर कोई फाइल है उसमें क्या लिखा है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट वर्ड बाय वर्ड अभी रिटन मराठी समझने में, रिटन एडमिनिस्ट्रेटिव मराठी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मराठी इज डिफिकल्ट इवन फॉर मराठीज।
क्योंकि वो जो है ना बिल्कुल शुद्ध हिंदी जैसी वाली बात हो गई। भाई हाँ, रोज के बोलने में आप ऑब्वियसली वो वाली यूज नहीं करोगे। एग्जैक्टली। तो इससे मेरे को फनी इंसिडेंट याद आता है। समवन टोल्ड मी दिस इंसिडेंट कि देयर वाज एन ऑफिसर, देयर वाज सम लेडी, सीनियर लेडी आईएएस ऑफिसर हु वांटेड टू लर्न मराठी। तो इन हर प्रोबेशन डेज और इन हर फर्स्ट एसडीएम शिप, शी यूज्ड टू, वो क्या करती थी, एक मराठी में कोई भी नॉर्थ इंडियन, नॉर्मली नॉर्थ इंडियन होता है ना, मतलब उनको पता नहीं होता कि तुम मराठी नहीं हो, तो दे विल स्पीक टू इन हिंदी। नॉर्मली क्या होता है, कई बार दे एज्यूम कि तुम्हें मराठी नहीं आती हो, व्हिच इज वेरी कर्टियस, व्हिच इज वेरी नाइस कि वो हमको कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। तो शी यूज्ड टू गेट अनॉयड कि यार मेरे को मराठी में, मेरे से मराठी में बात करो, हर बार बोलने में प्रॉब्लम होती है ना। तो उन्होंने अपनी जो नेम प्लेट टाइप होता है ना, उस पे पेंट करवा के लिख दिया फक्त मराठी बोला। सो एवरीवन हैज टू स्पीक मराठी। वो उनके नेम प्लेट की जगह उनके दूसरा प्लेट लगा हुआ था उनकी टेबल पे कि फक्त मराठी बोला। तो हाँ, तो फिर जो भी ऑफिस में आता था उसको सबसे पहले दिखता था कि मराठी में बोल रहा है, अदरवाइज आई विल गेट ए किक फ्रॉम दी फ्रॉम मैम। तो सो आई यूज्ड टू आल्सो डू दैट। मैं लोगों से कहता था कि यार मेरे को अभी भी, मेरे से नाउ आई हैव बिकम कंफर्टेबल, तो कोई भी मराठी हिंदी में भी बात करता है मैं मराठी में भी जवाब देता हूँ, बिकॉज इट्स देन दे नो कि हाँ भाई he knows Marathi, you take it seriously, and they feel very proud. Marathis feel very proud that we speak Marathi. Yes, yes. That's the good thing. I really love that. So मेरे साथ भी सर एक दो इंसिडेंट हुआ है कि जब मैं बोलता हूँ ऑफिस में कि आप मराठी में बोलो, मुझे समझ में आती है, देन दे गेट हाँ, वेरी हैप्पी कि अरे सर, तो सर को अभी, सर इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सर को बस 2 महीने हुए हैं एंड सर को हाँ, मराठी समझ में आती है, सो दे गेट वेरी हैप्पी। और मैं भी लाइक आई आल्सो फील प्राउड कि 2 मंथ से मुझे मराठी अच्छे समझ में आ रही है, सो व्हाट कुड बी मोर बेटर देन दिस। और yeah, धीरे धीरे exactly. इम्प्रूव हो जाएगी। आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। और जैसे मैं मराठी के लिए, जैसे जीआरस होते हैं ना, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशंस वगैरह, उनको पढ़ लो। दैट यूज्ड टू हेल्प अ लिटिल बिट। इनफैक्ट थोड़े से बोरिंग होते हैं ऑब्वियसली, बट हाँ, यू कैन ऑलवेज रीड देम। और मराठी मूवीज देख लो, मराठी मूवीज आर वेरी गुड एंड मजा भी आता है देखने में, और इम्प्रूव भी हो जाती है मराठी। तो मेरी तो मीटिंग्स में बैठ बैठ के इम्प्रूव हुई है सीरियसली। 5 लोग बोल रहे हैं, टक 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 चल रहा है, एंड देन हाँ, यू आर ट्राइंग टू पे अटेंशन। यू आई यूज्ड टू राइट वर्ड्स, वो जो भी मेरे को नहीं आता था, तो ट्राई टू फाइंड द मीट। अब तो गूगल ट्रांसलेट में फटाफट देख लो। Exactly. अब क्या होता है, लाइक अगर कोई मराठी की डॉक्यूमेंट मुझे समझ में नहीं आती तो मैं गूगल ट्रांसलेट खोलता हूँ, उसमें स्कैनिंग का ऑप्शन है, सो आई जस्ट हाँ, स्कैन द होल डॉक्यूमेंट और उससे सब कुछ फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट हो जाता है। बट दैट इज शॉर्टकट, मैं ट्राई करता हूँ उसे यूज ना करने का, बिकॉज उस अगर एक हाँ, बार कंफर्ट जोन में चले गए फिर आपको सीखने में दिक्कत होगी। मैं फर्स्ट राउंड में पढ़ता हूँ, फिर देन इट बिकम्स टू मच डिफिकल्ट, देन मैं स्कैन करके उसको फिर मैं वर्ड टू वर्ड को रिलेट करता हूँ कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग क्या था। और सो इसी तरीके ये से। ना स्ट्रगल नेवर स्टॉप्स। हम सोचते थे भाई, पेरेंट्स सोचते थे एक बार 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिर ठीक है यार, लाइफ सेट हो जाती है। फिर कॉलेज में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कॉलेज अच्छा चले जाओ, सेट हो जाती है। फिर कुछ भी आईएएस ज्वाइन कर लो, कोई भी जॉब मिल जाए, लाइफ। हाँ, बट इवन आफ्टर ज्वाइनिंग आईएएस यू आर अगेन बैक टू जीरो। बिकॉज एग्जैक्टली। तुम्हें जहां भी तुम्हें पोस्टिंग मिलेगी वहां नया चीजें सीखनी पड़ेंगी। यस, गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ यू, आपको व्हीकल मिलेगा, घर मिल जाता है, सब चीजें छोटी छोटी गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ। पर काम तो है भी काम। लोगों को समझ में रहे काम है, और उसके लिए सारा सेक्रीफाइस, मतलब पूरा नया लैंग्वेज सीखो, पूरा नया करो। बट दिस इज द जॉय ऑफ दिस सर्विस, बिकॉज everywhere you will learn something new, and that will keep you always updated। उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ नया चैलेंज आता रहेगा। तो व्हेन आई वाज इन गडचिरोली, वहां पे तो बिल्कुल ही ट्राइबल एरिया था। वहां पे इतनी सारी चीजें सीखी। फिर जालना में आया, वो बिल्कुल अलग एरिया, मराठवाड़ा एरिया, वेरी डिफरेंट डायनामिक्स, वेरी डिफरेंट कल्चर। और फिर वहां से इधर वाले एरिया में, थाने वाले एरिया में, तो यहाँ पे तो डायनामिक्स ही अलग है। तो यू विल लर्न, तो तेरी भी जहाँ भी पोस्टिंग होती होती रहेगी, यू विल। और फिर मराठी अलग अलग बोलते हैं थोड़ा सा लोग, थोड़ा सा टोन्स में डिफरेंस हाँ, आता है। वो डायलेक्ट आ जाता है चेंजेस। वो सब चेंजेस चलते रहते हैं। तो महाराष्ट्र दर्शन कहाँ कहाँ पे हुआ था तुम्हारा? सर एक्चुअली हमारा महाराष्ट्र में 2 फेजेस में है, तो फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकंड फेज बाकी है। तो फर्स्ट फेज में वी कवर्ड कोंकण रीजन ड्यूरिंग द मानसून, तो उस टाइम फुल बारिश हो रही है एंड वी वेंट टू सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़ एंड रत्नागिरी। तो वी हम्म, कवर्ड 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन फेज 1, मतलब फेज 1 तो 7 और 10 डेज का था हमारा दर्शन, जिसमें हमने इन 4 डिस्ट्रिक्ट को देखा। एंड इन फेब लास्ट वीक, और सॉरी सेकेंड वीक, फेब सेकेंड वीक, वी हैव सेकेंड फेज ऑफ महाराष्ट्र दर्शन, जिसमें हमें विदर्भ रीजन और अदर मराठवाड़ा वगैरह में घुमाने वाले हैं। सो 2 फेज। So I would like to ask you one thing so that a lot of people, aspirants who might be watching this video can learn about it. एक प्रोबेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट होता है जो हमें करना होता है, जिसमें हमें लेटर्स, डीओ लेटर्स लिखने होते हैं, है ना? तुम्हें शायद लिखने पड़ते होंगे, हम तो लिखते थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, बिकॉज दैट इज समथिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट फ्रॉम यू।
सो डीओ लेटर में लाइक जो अभी तक मैंने दो डीओ लेटर लिखे हैं, एंड द लास्ट वन, द सेकेंड वन, बस 8 दिसंबर को उसकी डेडलाइन थी, मतलब 2 दिनों पहले। तो मैंने परसों ही से सबमिट किया है रात को 11 बजे के अराउंड। तो वो हमारी आदत कभी नहीं छूटती है लास्ट मिनट पे हमें असाइनमेंट सबमिट करने वाली। बट डीओ लेटर्स आर प्रीटी इंटरेस्टिंग। उसमें क्या है कि हमारा जो भी लर्निंग्स है, जो भी आई वुड से अटैचमेंट्स, हमने जो भी सीखा, जो भी ऑब्जर्वेशन है, नॉट फैक्चुअल थिंग बट विच वी कैन ऑब्जर्व, विच वी कैन लर्न, उसे हमें टू आवर कैडर काउंसलर एड्रेस करके एक डीओ लेटर लिखना पड़ता है। एंड डीओ लेटर का मेन मकसद ये है कि दिस इज नॉट अ टिपिकल फॉर्मल लेटर, बट इट इज मोर इन अ स्टाइल कि जिसमें आप अपने ओपिनियंस भी रख सकते हो। तो वो काफी अच्छा है। लाइक आई मेंटेन अ डायरी जिसमें मैं जितने भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी लर्निंग्स हो रही है, उसको नोट डाउन करता हूँ। जितनी भी नई नई चीजें पता चलती है उनको नोट डाउन करता हूँ। मैं अपने कलेक्टर सर को हर अटैचमेंट के बाद एक लंबा सा लिस्ट भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे कि सर मैंने ये चीजें सीखी, एकदम डिटेल में वाइज फॉर्मेट। सो उससे हेल्प लेके मैं डीओ लेटर भी लिख लेता हूँ। सो ये चल रहा है डीओ लेटर का। एंड अपार्ट फ्रॉम डीओ लेटर भी काफी सारे असाइनमेंट्स हैं जो अब जिसकी डेडलाइंस आ रही है धीरे धीरे। very so DO letter is basically demi official letter. ऑफिशियल। हाँ, और उसमें I find it very interesting because demi-official letter, DO letter, is a way for government officers to communicate with each other in a little bit of an informal way. Formality भी हो सकती है, but थोड़ा सा informal opinion जैसे तुमने बोला, ऐसे लिख सकते हो एक दूसरे को। और ये हमें प्रोबेशन के टाइम पे सिखाया जाता है कि हर महीने हमें अपना जो पिछले महीने में जो भी किया है वो हमें अपने कोर्स काउंसलर को डीओ लेटर लिखना होता है और उसमें बताना होता है। तो हमें फीडबैक भी मिलता है उसमें, दे रीड इट वेरी सीरियसली। मतलब कोर्स काउंसलर पूरा पढ़ते हैं, बताते हैं, और उसमें हमेशा मुझे फीडबैक मिलता था कि यार तुम लिस्ट भेज देते हो, तुम कुछ पर्सनल भी तो बताओ। मतलब क्या होता है ना, क्या होता है, इतना सारा लास्ट मोमेंट में लिखते हैं तो फिर इतना सारा दिमाग नहीं लगाते। बट देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग। मेरे भी 3-4 ड्यू लेटर्स में मैं पहले बस बहुत मैन्युअली लिखता था कि मैंने ये करा, ये करा, ये करा। फिर स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर पर्सनल, कि मैंने क्या सीखा या फिर मेरे को क्या लगा, what opinions did I have about the government system, about what can be done, और वो फिर eventually so that helps you। मुझे लगा उसके साथ इवॉल्व होता है तुम्हारा माइंड, डेफिनेटली। रिफ्लेक्ट करते हो। तो जैसे तुमने डायरी मेंटेन करते हो, अभी मेरी भी डायरी मेंटेन होती है पूरी। आई स्टिल लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरी, मतलब आई थिंक यू विल आल्सो डू इट, नॉट सरप्राइज्ड, कि गडचिरोली से लेके अब तक सारी डायरी मैंने अपनी संभाल के रखी है। उसमें डेली का मेरे को कहाँ पे मीटिंग्स थी, क्या करा, ऑब्वियसली शॉर्ट हैंड में। तो वो सब आपका एक रिकॉर्ड रहता है कि भाई एवरी डे तुमने क्या किया, कहाँ पे थे। कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, कहीं भी जाके आप दिखा सकते हो कि यार मैंने उस दिन यहाँ पे था, ये किया था। तो that record system is something that I think it's a legacy in the IAS, and it's continues even in the government. It's a legacy and it should be very strong. I feel that really helps. और उसमें एस्पिरेंट्स को मुझे क्या लगता है क्या सीखना चाहिए कि भाई नोट्स कैसे बना रहे हो, अच्छे नोट्स कैसे बना रहे हो, अच्छे नोट्स कैसे अभी से बनाओ, इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं हेल्प कर जाता है आई गेस। तो वो सब चीजें आती है। तो अब थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में पूछता हूँ। सिंस यू क्वालिफाइड एट सच ए यंग एज, तुमने ऐसा क्या किया, देयर वाज मतलब तुम्हारा ऑब्वियसली फोकस होगा, माइंड बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, एक अच्छी अप्रोच होगी, बट कुछ 5-6 चीजें बताओ जो मुझे लगता है कि जो बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बहुत एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि यार ये 5-6 चीजें अगर करोगे तो तुम ऑलरेडी 80% क्राउड से आगे हो, और उसके बाद तुम्हारी और मेहनत है। ऐसी कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रही हो तो बताओ। सो सर ये 5 चीजें अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊं तो सबसे पहला जो मेरा प्लान था वो था एक आई वुड से टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अभी क्या होता है कि एस्पिरेंट्स लोग टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते। अगर वो लाइक पढ़ते भी हैं तो दे आर नॉट, मतलब एक प्लान में नहीं पढ़ रहे, स्ट्रेटजी बना के नहीं पढ़ रहे। मेरा क्या था टाइम मैनेजमेंट में कि मैं अपने हर एक सेकेंड, हर एक मिनट का नोट रखता था। लाइक मुझे याद है जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था इन अप्रैल 2019, जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा था, तो when in the initial days I used to take 1 A4 sheet paper every night सोने से पहले, और उस पर मैं नोट करता था कि मैंने आज टाइम कहाँ का स्पेंड किया है। अगर मैंने लेट्स से कि 15 मिनट्स क्लासेस जाने में लगाए तो आई यूज्ड टू राइट डाउन ऑल्सो, उसको भी मैं लिखता था। उससे क्या होता था, एवरी नाइट मैं उसे फिर इवेलुएट और एनालाइज करता था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें से मैं टाइम डिडक्ट करके अपने पढ़ाई में जोड़ सकता हूँ। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है विच आई विल सजेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। तो उससे क्या है, एक ऑटोमेटिक काफी अच्छा डिसिप्लिन आपके लाइफ में आ जाएगा। अगर आपने एक महीने भी ये पेपर लेके लिखने वाला काम किया, उसके बाद लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ इंटरलाइज और मेंटल हो जाएगा। बट फॉर द इनिशियल 1 or 2 months प्लीज डू दिस थिंग। सेकेंड आई वुड से कि टाइम का जो वेस्ट वाला कंपोनेंट है, लाइक ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका सेकंड बीत रहा है, जो आपका मिनट बीत रहा है, वो बीत के वापस नहीं आएगा।
सो मैंने इंश्योर किया कि मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँ। मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, मतलब आई हैड नो फेसबुक अकाउंट, मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, और मैंने अपना जो फोन था, लाइक माई फोन वाज ब्रोकन, उसमें आप बस कॉल कर सकते हो और हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप यूज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। सो मैं फादर सेड कि यार फोन ले लो, कोई रेडमी वेडमी ले लो कुछ दूसरा। मैंने बोला कि मुझे फोन अभी नहीं लेना है, दिस इज द बेस्ट थिंग जो मेरे साथ हुआ है कि मेरा फोन अभी खराब हुआ है। तो मैंने मुझे तो उनको लगता है अब भी, मुझे तो अब भी लगता है कि काश मेरे फोन में व्हाट्सएप कभी ना होता। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली मुझे तो मतलब अभी भी लगता है, क्योंकि हाँ, काम से इतना डिस्ट्रैक्ट करता है ना व्हाट्सएप, मुझे लगता नहीं है कि प्रोडक्टिविटी कुछ बढ़ती बढ़ती है उससे। बिल्कुल नहीं बढ़ती सर। और जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स में बताता हूँ क्या होता है कि एक लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और ये मान लीजिए फोन है, ये लक्ष्मीकांत है, फोन को लक्ष्मीकांत के नीचे रखेंगे, इसमें कोई नोटिफिकेशन आया साइड से निकाल के देखेंगे, टाइप करके फिर अंदर रखेंगे। सो हाँ। इससे क्या होता है, पहले तो आपका अटेंशन जा रहा है, आप कंटिन्यूटी नहीं है पढ़ने में। दूसरा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और अगेन हम्म। टाइम वेस्ट जो है द लीस्ट दैट यू कैन अफोर्ड, तो ये तो करना ही नहीं है टाइम वेस्ट। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है। लाइक हम्म। मैं भी करोल बाग में मैंने रह के तैयारी की है, बट मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया। आई वोंट से कि लाइब्रेरी इज बैड टू गो, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप किस सर्कल से इंटरेक्ट कर रहे हो। मैंने बहुत बार देखा है, और मेरे बहुत सारे आई वुड से नोन पीपल दूर हो गए इस वजह से, बिकॉज सिंस मैं प्रिपरेशन में फोकस था। अब लोग आते थे, कहते कि यार बहुत पढ़ लिए, चलो चाय पीने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप 30 मिनट्स पढ़ते हो, 30 मिनट्स आप बाहर चाय पे चर्चा करते हो। सो दिस 30 मिनट्स ऑफ चाय पे चर्चा इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी मैनर। ये आपका बस टाइम कर रहा है, इससे आपका कोई नॉलेज गेन नहीं हो रहा है। सो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा यूपीएससी सर्कल में सिर्फ एक फ्रेंड था जिसका भी सिलेक्शन हो गया। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि उन्हीं को फ्रेंड्स बनाओ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इधर एकेडमिकली और मतलब वैल्यूज के थ्रू हो सकता है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है विद फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर। सो ये 3-4 चीजें हो गई। एक और चीज मैं बताऊंगा कि ऑलवेज आप, मतलब अगेन हमने जैसे शुरू में बात की टेक्निकल बेंड ऑफ माइंड। अब व्हाट हैपेंस कि बहुत लोग पढ़ते पढ़ते बुक में इतने बुक वॉर्म बन जाते हैं कि दे डोंट गेट एनी टाइम टू रिसर्च अपॉन थिंग्स। सो मैं क्या करता था कि जब भी मैं खाली, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और सब कुछ नहीं हो रहा है, तो आई ऑलवेज यूज टू रिसर्च ऑन गूगल। लेट्स से कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उस पर मैं डॉक्यूमेंट्री देख लूँ, 5G पे कुछ देख लूँ। अदरवाइज बहुत सारे 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं, स्पेस एक्स का बहुत सारे मिशन आने वाले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज हमारे आसपास हैं। तो उस पर मैं खूब रिसर्च करता था ताकि उससे नई नई चीजें मुझे समझने को मिली, और इससे माइंड भी काफी शार्प होता था। और लास्ट थिंग मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा शेड्यूल काफी डिसिप्लिन रहा और प्लान में रहा। लाइक मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम नहीं भी तो कम से कम 10 to 15 टाइम्स पढ़ा होगा बिफोर प्रीलिम्स। अब बहुत राइट। एस्पिरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि किसी बुक को आप 10 to 15 टाइम्स पढ़ कैसे लेते हैं। सो देयर इज वन सिंपल रीजन, और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। लेट्स से कि लक्ष्मीकांत में 600 पेजेस है पढ़ने के लिए। अगर हम इसे डेली पढ़े तो 20 पेजेस पर डे आएगा। अगर आपको एक मंथ में एक बार, सॉरी, स्पेक्ट्रम फिनिश करना है, 10 पढ़ रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स स्पेक्ट्रम फिनिश हो गया। और 8 to 10 टाइम्स होने के बाद स्पेक्ट्रम फिनिश करने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा नेक्स्ट राउंड। सो इस वजह से मैं 10 to 15 टाइम्स किसी भी बुक को पढ़ पाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप एक बड़े से टारगेट को छोटे छोटे, आई वुड से वीकली, मंथली एंड डेली में डिवाइड करें, एंड देन ट्राई टू स्टडी। सिमिलरली मेंस, मैंने जितने भी मेंस में सब टॉपिक्स है मेंस के सिलेबस में, उनको मैंने वीकली और डेली डिवाइड कर लिया कि मुझे कौन से डे में कौन से टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाने हैं। सो ये जितनी भी चीजें मैंने 4-5 चीजें बताई, इससे मेरा प्रिपरेशन काफी हद तक एक, आई वुड से, स्ट्रीमलाइन, फोकस्ड एंड डिसिप्लिन हो गया। आई वुड से यही 4-5 चीजें हैं जिन्होंने हेल्प किया मुझे। यस यस, नो दोस यू हैव टच्ड ऑन वेरी वेरी गुड पॉइंट्स एक्चुअली, बहुत जरूरी, और ये बहुत मतलब एकदम फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, एकदम फाउंडेशनल पॉइंट्स हैं। क्योंकि क्या होता है कि आधा तो टाइम वेस्ट का खेल है सारा, टाइम मैनेजमेंट और टाइम वेस्ट। डेफिनेटली। जितना टाइम एक एक सेकंड आप यूज कर रहे हो ज्यादा, उतना वो ऐड होता है आपके अचीवमेंट, मतलब आपकी इवेंचुअली जो आउटपुट आ रहा है आपका, उसमें वो ऐड होता है। और जैसे तुमने बताया कि मेरे को फोन, मैंने भी व्हाट्सएप नहीं था मेरे पास, फेसबुक कुछ भी नहीं, मतलब सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही यूज नहीं करता था मैं। अभी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा मेरा दिमाग लगा रहता है, हाउ डू आई पुल बैक, हाउ डू आई पुल बैक फ्रॉम सोशल मीडिया, सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एस्पिरेंट हो, लाइफ में एक गोल है, यूपीएससी निकालना है, तो बिल्कुल ही चले जाओ, फोन छोड़ दो, 1-2 साल कुछ फर्क नहीं पड़ता फोन छोड़ने से। और इफ योर फ्रेंड्स आर एंग्री एट यू फॉर लीविंग योर फोन, इफ योर फैमिलीज, देन दे आर नॉट द राइट पीपल, समझना चाहिए वो चीज। और लाइक यू सेड, फ्रेंड सर्कल थ्रू आउट योर लाइफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। क्योंकि फ्रेंड सर्कल क्या होता है, यस सम पीपल यू हैव वेरी इमोशनली यू आर क्लोज विद, तो वो कैसे भी होते हैं, उनके साथ रहता है अटैचमेंट, पर मुझे लगता है कि इवेंचुअली तुम्हारे पास टाइम कम होगा,
और तुम्हें उस टाइम में उन फ्रेंड्स को तुम कितना टाइम दे रहे हो जो तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली ग्रोथ, तुम्हारी वैल्यू सिस्टम्स में ऐड कर रहे हैं, तुम्हारे को सही राह पे चलने में हेल्प कर रहे हैं, और साथ में भी ग्रो हो रहे हैं तुम्हारे। दैट इज द बेस्ट, दोस आर द बेस्ट फ्रेंडशिप, बिकॉज यू विल चेरिश दोस फ्रेंडशिप्स। ठीक है ना? किसी के साथ भी चाय पीनी है तो कभी भी पी सकते हो, और मैं कहीं पे जाके कहीं पे यू जस्ट वांट टू हैव फन ऐसे फॉर 5 मिनट्स हो तो कहीं भी कर सकते हो। टेक्निकल बेंड ऑफ माइंड लाइक यू सेड, एंड डिसिप्लिन लाइक यू सेड, डिसिप्लिन लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, पावर ऑफ डिसिप्लिन, पावर ऑफ कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली डूइंग समथिंग डे इन एंड डे आउट विद रूल्स अराउंड यू, है ना? वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे लक्ष्मीकांत तुमने 15 बार मैंने भी पढ़ी होगी, इनफैक्ट मुझे लगता है सारे टॉपर्स पढ़ते ही होंगे 10-15। और बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर दो बार पढ़ूं क्या, 3 बार पढ़ूं क्या? अरे उसका काउंट नहीं होता, मतलब तुम इतने बार पढ़ लेते हो कि तुम्हें पता भी नहीं होता मैंने कितनी बार पढ़ी है, और तुम्हें हर चीज पता होती है, ये पेज में टर्न करना है, यहाँ पे ये मिलेगा, वहां पे वो मिलेगा, वो हो जाता है। पर उसके लिए जैसे तुमने कहा बिग टास्क को, अब तुम पत्थर तोड़ने जाओगे, पहाड़ तोड़ने जाओगे, तो पहाड़ को देख के तोड़ नहीं सकते पहाड़, उसके एक पत्थर को ही देखना होगा कि इस पत्थर को मेरे को आज तोड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पत्थर तोड़ना है, उससे पहाड़ टूटता है। तो आई थिंक वही है अप्रोच, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए। मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स विल हैव काइंड ऑफ होपफुली सम विल लर्न फ्रॉम इट। मुझे एक चीज बताओ कि इफ नॉट आईएएस, लेट्स से, देन व्हाट? बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार सर आईएएस नहीं हो तो क्या करना है, तो व्हाट वुड यू थिंक कि तुम क्या करते? पहली बार तो लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट नहीं होता कुछ भी, तुम्हारा मूड बदल जाता कि कुछ और करना है, तो क्या करते? इनफैक्ट इसका आंसर तो सर मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि इफ नॉट आईएएस देन व्हाट। ऑनेस्टली मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मेरा एक चीज क्लियर था, लाइक माय पेरेंट्स वर इन एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिफिकल्टी मुझे दिल्ली में पढ़ाने से, मतलब बहुत सारा लोन हो चुका था। और मुझे याद है कि जब मेरा रिजल्ट आने वाला था ऑन 24th सितंबर 2021, तो उसमें मतलब जो भी था 24 सितंबर, उसमें मेरा एक चीज क्लियर था कि इधर मेरा एक्चुअली सामान वगैरह सब कुछ पैक हो चुका था, माई रूम वाज एवरीथिंग डन, एवरीथिंग सेट। अब या तो मुझे लबासना जाना था या फिर परमानेंटली घर जाना था, दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने कह दिया था कि नाउ मतलब जितना हमने करना था वो कर दिया, अब हम एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टडी इन दिल्ली, पर्टिकुलरली जब आपके पेरेंट्स विलेज में अर्न कर रहे हो तो। सो ये चीज हमेशा मुझे पुश करती रही कि यू हैव ओनली वन अटेम्प्ट, और इसमें यू हैव टू गिव एवरीथिंग दैट यू हैव। तो उसमें मैंने मतलब ये केयर ही नहीं किया कि मतलब मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, थिंग इज दिस। तो मैंने बहुत मेहनत किया और इवेंचुअली आई क्रैक्ड। और इफ नॉट आईएएस देन व्हाट, इस पे मैंने ऑनेस्टली गौर नहीं किया, बट शायद वही जो बाकी लोग करते हैं, मैं शायद अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स का शायद मैं एंट्रेंस एग्जाम देता, अदरवाइज या फिर मास्टर्स करता, बट आई हैड ओनली वन टारगेट और इसको तो करना है, दैट्स इट। किसी तरह से निकालना है, हाँ हाँ, हाँ। किसी तरीके से निकालना नहीं है। नहीं, दैट्स अमेजिंग यार, बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारा इतना फोकस माइंड था कि कुछ और सोचा भी नहीं। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट शुरू में ही डाउट करने लगते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, एग्जैक्टली। कि मैं कैसे करूंगा, प्लान भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहले तो प्लान भी आपको रखना ही नहीं चाहिए, पहले आप टोटली यू आर गोइंग फॉर इट, यू गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, और अच्छा सा डिसिप्लिन करके प्लान बनाओगे तो सब कुछ डेफिनेटली पॉसिबल है। और टू बी ऑनेस्ट, इन द रेस ऑफ बच्चे कहते हैं 10 लाख लोग बैठते हैं, 10 लाख में से तुम्हारा कंपटीशन तुमसे ही है, और किसी से भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ए चैलेंज। डजंट मैटर ना दूसरा पेपर हार्ड आ रहा है, इजी आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे तुम कैसा कर रहे हो पेपर में, दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। इट इज एज सिंपल एज दैट, सो डोंट व्यू इट एज कंपटीशन, मुझे लगता है। और तुमने मुझे उस दिन ये भी बताया था कि तुम एनडीए में भी सिलेक्ट हुए थे, Yes, that's very, so I went to, I joined NDA, in fact, I also qualified for the NDA, but I got medically unfit, so I had to leave. तो I think destiny थी, मुझे भी बहुत, मतलब because I went to a military school, so I always wanted to join the military, it was a dream at that time for me. But तुम्हें कैसे आया दिमाग में यार, because it's a job perspective से सोचा या फिर actually कुछ और perspective से सोचा? नॉट एट जॉब पर्सपेक्टिव से, बट मेरा क्या था, लाइक आई ऑलवेज सेड कि आई ऑलवेज ए टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड। तो मुझे एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, जेट इंजन्स, इन सब चीजों पे रिसर्च करने में काफी शौक था। लाइक अगर मैं खाली बैठा हूँ, स्कूल टाइम्स की बात बता रहा हूँ सिर्फ, तो उस टाइम मैं गन्स के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग इट, बट टू अंडरस्टैंड कि इसमें लाइक कितना एडवांसमेंट आ चुका है हमारी टेक्नोलॉजी में। मैं मिसाइल्स के बारे में सर्च करता था, मैं फाइटर जेट्स के बारे में पढ़ता था कि कैसे कैसे किन किन कंट्रीज के पास क्या क्या है। तो इससे मेरा धीरे धीरे एयरफोर्स में इंटरेस्ट जनरेट हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, मैं एनडीए का एग्जाम देके देखता हूँ, होना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आई गेव द एनडीए एग्जामिनेशन, आई क्लियर्ड रिटन। फिर मेरा एसएसबी इंटरव्यू वाज इन 17 एसएसबी बैंगलोर, तो वहां पे मेरा एसएसबी क्लियर हो गया। एंड देन इन द मेडिकल, आई एम कलर ब्लाइंड,
So I was again declared medically unfit, and color blindness is not negotiable. इसका कोई क्योर भी नहीं है और कोई there is no actually cure for it, और ये genetic issue है. तो I exactly remember हमारा medical went on for 10 days, और उस 10 days में the last day was scheduled for eye test. In eyesight 6/6 अभी भी है, और मतलब 6/6 है, but in the color blindness test I was shocked. मुझे कोई आइडिया नहीं था पता नहीं कि होगा, पता ही नहीं बिल्कुल होगा. पता नहीं होता है सर, बिल्कुल पता नहीं होता है कि कलर ब्लाइंडनेस नाम की कोई डिजीज होती है. हाँ. लाइफ में कभी पहले फेस नहीं किया. सो आई वाज शॉक बियॉन्ड कोर कि भाई ये क्या हो गया. फिर मैंने वहां पे जो मेडिकल ऑफिसर थे, ही वाज आई थिंक एयर कमोडोर लेवल सीनियर ऑफिसर, लाइक द हेड ऑफ दैट स्टेशन. मैंने उनसे भी बात किया कि सर कुछ तो इलाज होगा इसका, सर कुछ तो, आज के वर्ल्ड में कैंसर तक का इलाज है, इसका क्यों नहीं हो सकता. बट देन दे सेड कि जेनेटिक है, इसका कोई कुछ नहीं हो सकता. बट अगेन आई थिंक डेस्टिनी हैज अदर प्लान्स. एंड एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने यूपीएससी क्लियर किया, सो आई ज्वाइंड लबासना ऑन 5th of December 2021, and I cleared my ND examination, the SSB, on 5th of September 2017, जिस साल मैंने 12th पास किया. सो ऑन 11th of December 2021 हमारा पूरा बैच को IMA लेके जाया गया था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, to witness the passing out parade of NDA 139th course. And this was the same course जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था. और मेरे साथ 5 लोग रिकमेंड हुए थे, जिसमें से I was sitting as an IAS, as an IAS officer trainee in the Darshakwala area, and 4 of my friends, 4 of my batchmates from NDA were passing out मेरे सामने. So that was a wonderful moment कि destiny has plans, कि आप IAS बन के देख रहे हो और सामने जो आपके साथ रिकमेंड हुए थे वो आखिर मिलिट्री ऑफिसर्स बन गए. Yeah, that is nothing but destiny. That is an amazing story. मतलब देखो, color blind, मेरे भाई छोटा भाई color blind है. So he also wanted to join the Air Force, but उसका because of color blindness उसका fail हो गया था. तो मुझे लगता है उसका तो कोई तुम कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान ने तुम्हें ऐसे ही भेजा है. But SSB clear करना is an achievement itself. SSB is a very difficult exam, interview process. तो मैं भी I have been through it. मेरा भोपाल में हुआ था. और मुझे लगता है कि you know the fact that you have come from there till now you are here today, you know, मतलब it speaks a lot about your personality, about your determination. So I really admire that. और मुझे लगता है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार देखो, जहाँ पे जब तुमने एनडीए ज्वाइन करा था उसके बाद वही कोर्स पास आउट हो रहा है, यू नो, फ्रॉम आईएमए, और तुम आईएएस ऑफिसर बन के उसी, मतलब हाउ, व्हाट आर द ऑड्स, मिलियंस में सारे शायद तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे उनसे मिले तुम जो पास आउट हो रहे थे? एक्चुअली उनका पास आउट होने के बाद डायरेक्ट टिपिंग सेरेमनी होता है विद देयर पेरेंट्स, और हमें काफी लिमिटेड टाइम के लिए वहां पे लेके जाया गया था, तो उस टाइम तो नहीं मिल पाया. बट अगेन ऑन द नेक्स्ट वीकेंड साले देहरादून में ही थे, देन आई वेंट एंड मेट देम. सो दैट वाज वंडरफुल मोमेंट्स. Quite something, you know, कि मतलब, and मतलब I don't know, I have nothing to say, but I feel very proud of that and I feel very good about that, because मुझे लगता है कि because I have very close association with the defense forces. मेरे बहुत सारे friends अभी posted हैं, majors हैं, lieutenant colonels हैं, और जब भी उनको मतलब उनसे बात होती है, जब भी उनके साथ बात होती है, तो हमेशा मतलब उनको भी अब समझ में आता है कि हाँ भी सिविल साइड में कैसी लाइफ होती है, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा हम बात करते हैं अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में, और उनसे मुझे पता चलता है भी डिफेंस में कैसी लाइफ होती है. तो दैट इज आल्सो ग्रेट एक्सचेंज, आई एम श्योर इफ यू विल कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स, यू नो. अभी तुम भारत दर्शन हो गया क्या तुम्हारा? हाँ सर, वो तो हो गया फेज 1. हाँ, हो गया ना. हाँ, तुम वहां तो गए ही होगे, तुम आर्मी अटैचमेंट के लिए गए होगे शायद. आर्मी अटैचमेंट में सर काफी, मतलब आई वुड से दोज वर द बेस्ट 7 days ऑफ माय लाइफ जो मैंने फेस किया सर. लाइक मैं लोकेशन तो ऑफ कोर्स पता नहीं बता पाऊंगा नहीं, बट वी वर ऑन अ फॉरवर्ड पोस्ट ऑन एलओसी. तो एलओसी पर वी वर देयर, सामने पाकिस्तान का पोस्ट हमें दिख रहा है, एंड इट्स एक्सट्रीम कोल्ड, देयर वाज नो व्हीकल, नो सिविलियन अलाउड, वी वर स्टेइंग विद आर्मी. आई मीन वो काफी बेस्ट 7 days थे ऑफ आर्मी अटैचमेंट. बेस्ट टाइम होता है वो, क्योंकि उसमें तुम देखते हो कि आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो क्या लेवल पे काम करती है. मतलब क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिस्टिक्स, मैन पावर मैनेजमेंट, यू नो, मतलब जो भी आप हर चीज के में कैसे वो मैनेज करते हैं, मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनी से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, और इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन में, कंडीशंस में. तो दैट इज समथिंग दैट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम. तो यू नो, बट आई हैड एन अमेजिंग मतलब कॉन्वर्सेशन विद यू. आई थिंक हमने सब चीज, इतनी सारी चीजें भी बात करी, from your personal interest to your journey in the IAS to this whole army वाला thing, जो बिल्कुल एकदम अचानक से मुझे पता चला, और ऊपर से यू नो योर एडवाइस अबाउट प्रिपरेशन. तो कीप इन टच,
you know, and let me know if you have any questions. जो भी हो मुझसे पूछना, कभी मुंबई आ रहे हो, बीच में आ रहे हो, झलक चल के आ रहे हो तो मुझे जरूर बताना, we will meet up. और Def- तुम्हारा जब बैच आएगा तो तुम मुझे जरूर बताना, I will host you guys at my place, so we will have definitely. ठीक है, and तो keep you know, keep doing well and best of luck सत्यम. Thank you so much. ठीक है, ओके, ठीक है, तो आई थिंक रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ.